So welcome back to my viewers. Yes, I am Miss Rumina, and yeah, we are going to study about your part 6 of 100 most important questions. Beta, in this we are going to discuss about your straight line, a very most important chapter I would say. डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ अगर मैं जैन अटैम्प्ट में जो आपका पेपर हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट अटैम्प्ट जो हुआ है आपका 2024 का, उसमें स्ट्रेट लाइन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज 2-3 टॉपिक्स को मर्ज कर दिया गया, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी डिफ़िकल्ट part to understand. Okay, so now it just got rotated, sorry kids. Yeah, so now let's get ready, and today in this class we are just going to talk about straight line. जो उसके difficult questions थे मैं वही discuss कर रही हूँ. The easy one I have left as a homework which you people can easily do on your own. Okay, so let's get started. So now if you just see one thing, sorry I was just doing some setting, that's why it took me a time. Yeah, let's do your question number 1. So first of all it says me, let R be an interior region between the line 3x minus y plus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 5 equals to 0, containing the origin, the set of all values of a for which the points a square a plus 1 lies in the region R. And these all are the options. So what is going to be the set of values for a? So first of all bacha, for this you firstly need to plot these two equations, this and this. So if I just see, this is my 3x minus y plus 1 equals to 0. Let's make a box for this. First of all, you know that you just have to find two values to obtain your answer. Let's put your x as 0. So when your x is 0, your y is going to be 1. I think सबको आते simple calculation तो. And when your y is 0, your x is going to be minus 1 upon 3. This is a Cartesian plane and we just have to plot this point. So 0 comma 1 is going to be somewhere over here, and minus 1 comma 3 comma 0 is going to be somewhere over here. So it's going to be like this basically. And the second is x plus 2y minus 5 is equals to 0. Now just try to plot this also in your graph. So it would be x, it would be y bacha. I hope till here it must be clear. Now just put your x as 0. So y is going to be 5 by 2. And then just put your x y as 0, so it's going to be 5. तो ये काफ़ी सिंपल था. 5 यहाँ पर आ जाएगा कहीं ना कहीं. So one point is over here and other point is going to be 5 by 2, that is 2.5. तो somewhere यहाँ पर so it's going to be like this. Yes, ये मेरे पास क्या आगे बचा, मेरे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ आ गया. ये सब रफ वर्क है, तभी मैं इसको बहुत क्लियरली नहीं लिखूंगी बिकॉज आपको सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना था वहाँ पर. तो सो रीजन कौन सा हुआ, एंड कंटेनिंग द ओरिजिन, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशंस को कंटेन करेगा प्लस ओरिजिन को भी कंटेन करेगा. ओरिजिन इज ओवर हेयर कहीं ना कहीं. सो ऑब्वियसली द मार्किंग द पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी इज दिस. ओके, द रीजन इज गोइंग टू बी दिस आर. सो जब मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई रीजन बेसिकली विच यू कैन सी इट ओवर हेयर आर. Now what we have to do, the set of values for a for which the point a square plus a plus 1 lie in the region. That means कहीं ना कहीं यहाँ पे ही कहीं ना कहीं मेरे पास जो है a square और a plus 1 lie कर रहा होगा इस region के अंदर. So just see one thing very carefully beta over here. If I want, I can just mark my point over here. Okay, मैं इस point को क्या बोल दूँगी, this is my a square comma a plus 1. अब देखो एक चीज़, मुझे पता है ओरिजिन भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है. सो कहीं ना कहीं इस दोनों लाइन के इस तरफ लाई करेगा. जब भी पॉइंट दोनों लाइन के इस तरफ लाई कर जाए तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट इज़ अ कंडीशन. सो नाउ लेट्स टेक द प्रोडक्ट बेसिकली. सो मुझे प्रोडक्ट किसका लेना होगा बच्चा, आई जस्ट हैव टू टेक ओरिजिन एंड दिस पॉइंट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेशन. लेट्स सी हाउ. एक्स क्या है 0 और वाई क्या है 0. पहले मैं 0 कमा 0 ले रही हूँ. सो दैट इज़ 0 minus 0 plus 1 into में क्या आएगा, दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ओनली. बस वैल्यू पुट कर दो एक्स और वाई की. सो 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0. सो कैंसिल 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस a ग्रेटर देन 0. यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. सो 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0. सो a वुड बी ग्रेटर देन 0 एंड वेयर एज आई वुड से दैट 3a minus 1 greater than 0. So a would be your greater than 1 upon 3. So यहाँ से मेरे पास क्या है बच्चा, यहाँ से मेरे पास आंसर आया 0 and 1 upon 3. Okay, so I got this as my answer. Similarly you can just do one more thing, that is आप लोग अपना सिंपली सॉल्व करके अपनी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ही इसी सेम तरीके से जस्ट बाय पुटिंग 0 एंड
this value. So that would be your, if I just see over here, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, x ये है मेरे पास. अब x plus 2y minus 5 is equals to 0 and this is for 3x minus y plus 1 is equals to 0. So that would be बच्चा 0, 0 तो सिर्फ -5 इंटू, अब जब a स्क्वायर और a प्लस 1 है यहाँ पुट कर देते हैं. सो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस 1, सो 2a प्लस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन 0. सिंप्लीफाई करते हैं, -5 वहाँ जाएगा. सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू चेंज द साइन, बट and then 0.5 है तो as it is ही रहेगा, not going to make such difference to us. So it would be your a square plus 2a minus 3 less than 0. Simplify कर देता है by middle term splitting. So a square plus 2a, no, let's take 3a minus a minus 3 less than 0. I'm just solving it over here. Let's take your a as common. So a plus 3 minus 1, a plus 3 less than 0. So that would be a plus 3 into a minus 1 less than 0. So for less than 0 we just have to form your wavy curve method. यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मेरा -3 और यहाँ पे आ जाएगा 1. फिर वेवी कर्व के लिए बस कुछ नहीं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आंसर. जब मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, -3, लेट्स पिक -4. सो -4 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रहेगा. सो नेगेटिव. 0 ले लेते हैं, है ना, तो 0. सो इट हैज़ टू बी अगेन नेगेटिव. Then it would be 1, so 2 ले लेते हैं. So 2 to 4 it's going to give me positive. So yes, यहाँ से मेरा आंसर क्या आया था, नेगेटिव आया है. So I can simply say कि मुझे एक बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दोबारा. 4, okay, 4 4 16 and then it would be -8 -3. नो बचा, यहाँ पे ये छोटा नंबर है ना, प्लस. सो प्लस नेगेटिव नेगेटिव, हमें तो नेगेटिव ही चाहिए था, नेगेटिव यहाँ पर है. सो दैट मीन्स मेरा a कहाँ बिलोंग करेगा, -3. सो माई a बिलोंग्स टू -3, 1. जब मेरा a यहाँ पे बिलोंग किया, अब एक चीज़ देखो बेटा, जब आपका a यहाँ पर बिलोंग कर गया, नाउ हाउ टू सॉल्व इट फर्दर ऑन. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मेरा आंसर इनमें से कोई एक होगा. सो यहाँ से मेरे पास क्या था, a greater than 0 and a greater than 1/3. So that means my answer is going to be this. My answer is going to be this B option. That would be your a belongs to -3, 0 union 1/3, 1. ठीक है ना. तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मेरा -3 से 0 गया, यहाँ पे रुक गया, फिर 1/3 से मेरा 1 तक गया. दैट्स इट, दैट इज़ वॉज माई आंसर एंड बी वॉज द ऑप्शन. ये सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, नॉट अ डिफिकल्ट वन. नाउ लेट्स कम मूव टुवर्ड्स योर डिफिकल्ट क्वेश्चन. येस, ये थोड़ा सा ट्रिकी था. अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. Now it says me that if a, b, b, 3, 4 and c -6, 8 respectively denote the centroid, circumference and orthocenter of a triangle, then the distance of the point P from the line this and this much measured parallel to the line this much. Let's form this. First of all, a क्या है, centroid है. तो बेटा okay, students, so now let's start the answer. So this was the line I have. This would be my A being a centroid. Now I know कि मेरे पास circumcenter है और orthocenter है. तो circumcenter मेरा यहाँ पे आएगा B and orthocenter यहाँ पे C. So ये है -6, -8. A is my A, B and B is my 3, 4. So just look at one thing now. So and I know कि जो मेरा centroid है that is in the ratio of 2:1. So my value of A would be equals to 2. बस apply that section formula, you will get your answer. So 2 into 3 -6/3. So that is 6 - 6, 0. Similarly, your B is also going to be 2, 4 -8. So that would be your 8 - 8. That is also going to be 0. That means my answer is 0, 0 for A, B. So if I just want to obtain the value of A and B, because firstly from यहाँ से मुझे सिर्फ A और B की वैल्यू मिलनी थी. So the distance of point P. So P is going to be 3, 5. Now it says that from the line this much. Let's make a other diagram बच्चा. It says me that there is a point P over here and यहाँ पे मेरे पास एक line है. मुझे दोनों का क्या निकालना है, मुझे दोनों का ही उठाकर अपना दोनों से ही उठा के अपना डिस्टेंस ऑब्टेन करना है. बेसिकली P और इस लाइन का डिस्टेंस ऑब्टेन करना है, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, एंड दैट लाइन इज बेसिकली पैरेलल टू दिस. दैट मीन्स इस पॉइंट के पैरेलल होगा. ये एक लाइन है जो पैरेलल जा रही है, ठीक है ना. तो ऐसे कुछ होगी वो लाइन.
जो पॉइंट P से पास हो रही है, एंड दैट लाइन इज सेट टू मी एज x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक और लाइन है जो ऐसे पैरेलल जा रही होगी, ठीक है। सो लेट दिस बी योर डिस्टेंस r, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस r हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन दिस पॉइंट, एंड ये पॉइंट क्या है बेटा, जस्ट रिमेंबर द पैरामेट्रिक फॉर्म। सो पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग ये मेरे पास है 3,5, सो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए इट वुड बी 3 प्लस r cos थीटा, एंड the other point is basically your 5, that is the y intercept, so y 5 plus r sin theta। तो पहले ये cos थीटा sin थीटा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय दिस इक्वेशन, बीइंग पैरेलल है तो इक्वल ही रहेंगे, सो tan थीटा। So let's obtain your tan theta first of all from this line. So I think you must be knowing that y is equals to mx plus c. Let's obtain your m, so that would be y equals to your माइनस एक्स प्लस 1 एंड इट वुड बी x by 2। सो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा बच्चा, माई tan थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू योर 1 by 2। ओके सिंस माइनस था यहाँ पे तो इट वुड बी प्लस 1 by 2 एंड माइनस 1/2, ये आ गया। सो प्लस 1 by 2 tan थीटा आया। देखो बच्चा, इफ़ आई जस्ट मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, 1 ये रहा 2 ये रहा, तो ये √5 हो जाएगा। सो नाउ आई कैन सिंपली से कि यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इट वुड बी 3 प्लस r। व्हाट इज़ योर cos थीटा, cos इज योर base upon the hypotenuse। So now what is your base, basically we have to think that only। So now since you know that this is going to be your theta, so your base would be 2, so 2r upon √5 comma 5 plus r sin theta, so 1 upon √5, ये आ गया मेरे पास। now बच्चा I got my parametric form, so now we have so I got my tan theta, I got my cos theta, I got my r theta, I got the equation। बेटा देखो मुझे यहाँ से मेरा ये पॉइंट मिल गया बेसिकली, एंड व्हेन आई गेट माई पॉइंट, तो मुझे पता है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, एंड व्हेन आई नो कि हाँ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, सो मेरे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या हो गया कि आई कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ माई x and value of my r to obtain the value of my r, and that is what we have to do firstly in the initial stage। So that would be basically your 2 into x was your 3 plus 2r √5 and plus, sorry for the comma, plus 3 into 5 plus r √5 minus 4 is equals to 0. Just simplify this. Once I simplify this, I'm going to get 6 plus 4r √5 plus 15 plus 3r √5 minus 4 is equals to 0. Simplify this, find the value of r, and the value of r is going to be your 17 √5 upon 7. It would be like this, and since it is a distance over here, what is your r? R denotes your distance, so that means yes, your distance is going to be 17 √5 upon 7. So that is the distance of a point P from the line this much, and that is where P passes a line parallel to your this axis, that is this point। okay, I hope the content must be clear। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। फर्स्ट ऑफ ऑल A was given to me as my centroid and C and B was here 2:1 की मेरे पास रेशियो थी। फिर मुझे पता है कि मेरे पास पॉइंट A आया, पॉइंट B आया, जैसे A और B आया मेरे पास पॉइंट P आ गया। वंस आई गॉट माई पॉइंट P, आई नो कि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट होगा। उसके बाद बच्चा आई स्ट्रिक्टली नो कि हाँ ये जो पॉइंट है दिस इज़ माई 3 प्लस r cos थीटा 5 प्लस r sin थीटा। सो बस मैंने इसको पुट किया है, और देखो हमें यहाँ से cos थीटा और r थीटा पैरामेट्रिक फॉर्म के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज इस इक्वेशन का यूज़ मैं सिर्फ tan थीटा निकाल सकती थी बाय यूजिंग माई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो यहाँ से मैंने अपना tan थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकालते ही मैंने cos और sin निकाला, ये वाला वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के बाद मुझे पता कि मेरा जो r है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ अ डिस्टेंस बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट P, बिकॉज इसकी इक्वेशन ही ये थी, और इससे मैंने अपना यहाँ पे पुट किया और अपने r की वैल्यू निकाली। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट येस यू हैव टू लर्न द अप्रोच लाइक दिस। Now move towards next question. In a triangle ABC, suppose y is equals to x is the equation of the bisector of an angle B। Okay, so first of all we have a triangle ABC। बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते रहना, एक बार वैसे वैसे करते रहा करो, एंड प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं यू कैन जस्ट स्किप द वीडियो, यू कैन जस्ट चेक योर फाइनल आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, एंड देन यू कैन जस्ट मूव अहेड। देयर इज़ नो नीड टू व्यू माई फुल वीडियो, आई एम स्टिल सेइंग दैट, ओके, बिकॉज मैं हर बच्चे को लेके चलती हूँ। सो ABC इज़ अ ट्रायंगल, सपोज y इज इक्वल्स टू x इज़ द इक्वेशन बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीटा। सो ये मेरे पास B है, इसका एंगल बाइसेक्टर था, एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड AC इज़ AC जो है उसकी इक्वेशन है
2x minus y is equals to 2, and if 2ab is equals to bc, let bc be t, so ab be 2t, and the point a and b are, okay, a is my 4,6 and b is my alpha comma beta, ठीक है. देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू, ये था मेरे पास मेरा एक्चुअल डायग्राम. नाउ जस्ट वन थिंग, एक चीज़ बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है. सिंस आई नो दैट बी इज़ माई एंगल बाइसेक्टर, बेटा जब भी बी मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा तो यहाँ से मैं जो भी लाइन निकालूंगी एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अदर लाइन. सो मुझे पता है कि जब ये 90 फॉर्म हो जाएगा बेटा, सो आपका जो रेशियो आएगा उसके बाद दैट वुड बी 1:2, ये आपका रेशियो आना चाहिए. सो बेसिकली अब वो पॉइंट सी हो या वो कोई और एक आर्बिट्ररी पॉइंट हो, इमेजिनरी पॉइंट हो फॉर योर ए, दैट इज़ दिस. अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट कौन सा हो सकता है, इट कैन बी एनी रैंडम पॉइंट, बट द एंगल फॉर्मिंग बिटवीन देम शुड बी योर 90 डिग्री ओनली. दैट इज़ द ओनली कंडीशन दैट वी हैव ओवर हियर. ओके, आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा सब सारी चीज़ें. सो नाउ इसकी रेशियो क्या होगी बच्चा, द रेशियो इज़ गोइंग टू बी 1:2. फॉर दैट वी कैन जस्ट टेक योर ए सी एज द सेम रेशियो, बिकॉज इन देन वो सेम प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी 1:2. ओके, जब मेरे पास बच्चा ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आ गया है, अब एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि आई नो दैट कि सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले आई ऑल्सो हैव टू फाइंड दिस पॉइंट, करेक्ट. एंड नाउ टू फाइंड दिस पॉइंट आई नो वन थिंग, मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास पॉइंट भी है यहाँ पर. ओके, एंड आई कैन सिंपली ऑब्टेन माई दिस पॉइंट इफ आई जस्ट सब्स्टिट्यूट माई वाई इक्वल्स टू एक्स ओवर दिस इक्वेशन, बिकॉज ये और ये बेसिकली मुझे इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. सो दैट वुड बी 2x minus x is equals to 2, so my x is equals to 2. If I just put this y, so my y is also equals to 2. So I got the other point, that is I can just say that this point is my 2,2. अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया है. अब मुझे c का भी पॉइंट निकालना है और मुझे ये पॉइंट देखना है कि ये दोनों सेम तो नहीं है. सिंस यहाँ पे a है 4,c और यहाँ पे एक लाइन है y इज इक्वल्स टू x, तो अगर इसका मुझे मिरर इमेज निकालना होगा तो कुछ नहीं, इसको चेंज कर देते हैं 6,4, मतलब कि बेसिकली x को y बना दो, y को x बना दो. सिंपल रहता है जब भी मेरी ओरिजिन से पास होती है लाइन, बिकॉज y इक्वल्स टू x जो है वो ओरिजिन से पास होता है बच्चा. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ये पॉइंट ओरिजिन होगा, बट हाँ कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट होगा वो ऐसा बन रहा होगा और ये पॉइंट ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा होगा. दैट इज़ द बेसिक एम राइट नाउ. ओके, सो ये हो गया 2,2. सब एक चीज़ देखो बेटा, ओके मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट पहले डिलीट कर देती हूँ, अदरवाइज से कन्फ्यूज़ ही करेगा हम लोगों को. हाँ जी, सो नाउ आई गॉट कि ठीक है ये 2,2 आ गया, ये 6,4 आ गया. ठीक है ना, बस y को x कर दिया, x को y कर दिया. नाउ आई जस्ट हैव टू सिंपली ऑब्टेन माई पॉइंट सी. तो मुझे पास रेशियो भी है, मेरे पास पॉइंट भी है, ये भी पॉइंट है. आई कैन सिंपली ऑब्टेन माई रेशियो. सो 2 इज इक्वल्स टू, ना देखो 1, इसको x, y ले लेते हैं फॉर अ वाइल. सो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन it would be 3, so multiply 6 minus 8 is equals to x, so x is equals to minus 2. Similarly your 2 is equals to y plus 12 upon 3, so 6 minus 12 is equals to y, so y is equals to minus 6. So I got my point C from minus 2 to minus 6. बेसिकली मेरे पास पॉइंट C भी आ गया है, ये आ गया. अब बच्चा मुझे क्या निकालना था, लेट्स लुक एट द फॉर्मूला नाउ. ओके, मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और फिर इसके अंदर पुट करके इसकी आंसर निकालना है. सो एक चीज़ देखो बच्चा, यहाँ से मुझे पता है कि द पॉइंट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली बिटवीन दिस. सो एक चीज़ देखो, इफ़ आई वॉन्ट कैन आई जस्ट से दैट द स्लोप, लेट्स टेक इट एज ए डैश, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ बी ए डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ योर बी सी. दैट मीन्स स्लोप यहाँ से यहाँ तक हो या यहाँ से यहाँ तक हो, बिकॉज सिंस वी नो दैट ये पॉइंट और ये पॉइंट काफ़ी आसपास रहेगा, बिकॉज ये एक लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन बेटा मैंने बनाई थी यहाँ पर जिसका परपेंडिकुलर 90 था. सो वी डोंट नो कि विच एंगल इट्स मेकिंग. सो यस, ए डैश और सी काफ़ी सिमिलर रहेंगे एक दूसरे से. सो कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या होगा, स्लोप भी सेम रहेगा. सो सिंस द स्लोप इज सेम, आई कैन जस्ट सिंपली फाइंड योर स्लोप एंड दैट वुड बी योर्स. Okay, let's find out the slope now. It would be simply, okay, BA dash. So that would be 4 minus beta upon 6 minus alpha is equals to, and then it would be your यहाँ से यहाँ तक, so it would be minus 6 minus beta upon
-2 माइनस अल्फ़ा, मेरे पास ये आ गया है ना। सो नाउ जस्ट सी वन थिंग वेरी केयरफुली। नाउ बच्चा, सिंस वी नो दैट यहाँ पे ये 2t था, यहाँ पे t था, सो कहीं ना कहीं आई कैन से कि जो ये 2t है और ये t है, ओके नो, मुझे अपना रिलेशन चाहिए। y इज इक्वल्स टू x इज अ इक्वेशन फॉर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल b। ओके, यहाँ पे ये बाइसेक्टर भी गिवन था एंड द इक्वेशन AC। ओके, सिंस इट वाज द बाइसेक्टर दैट इज गिवन टू मी, सो आई कैन सिंपली से दैट माई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा, है ना। मेरा अल्फ़ा जो होगा वो बीटा के इक्वल ही होगा, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? सिंस मैंने आपको बताया ना कि ओरिजिन से पास हो रहा है, और अगर कहीं ना कहीं ये ओरिजिन से पास रहे, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है बेटा, तो ये पूरी लाइन जो है क्या करती है, ये मुझे सेम पॉइंट देगी, बिकॉज इट इज़ x इज इक्वल्स टू वाई। सिंस x इज इक्वल्स टू वाई, आई कैन जस्ट से दैट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा। सो जस्ट चेंज ओवर हेयर। So 4 minus alpha, 6 minus alpha is equals to -6 minus alpha -2 minus alpha. Just change the value. So 4 minus alpha upon 6 minus alpha is equals to 6 plus alpha, 2 plus alpha. If I'm just going to simplify this, it's going to give me the answer. That is 4 minus alpha into 2 plus alpha is equals to 36 minus alpha का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। 8 plus 8 प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। सो कैंसिल कैंसिल, यहाँ से इजीली मेरा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 36 माइनस 8 and that is going to give me the answer as 28. So alpha is going to be equals to your 14. I got the value of alpha. My beta is also going to be 14, and I can simply say that alpha, that is 14 plus, okay, let's change the pen color, you can just see the answer. So 14 plus 2 into alpha, that is 28, is going to be equal to, just add them, so 3 4, and that means 42 was your answer. That's it. It was a simple question, but yeah, you have to think a lot for this question. Now let's move towards your next question. It says me that if x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is the locus of a point which moves such that it is always equivalent to the line x plus 2y plus 7 equals to 0 and 2x minus y plus 8 is equals to 0, then the value for this. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ सर्कल इक्वेशन। आई नो बहुतों को डाउट होगा, जो इनिशियल प्रैक्टिस में होंगे, स्पेशली उन लोगों को बहुत डाउट होगा कि क्या ये सर्कल की इक्वेशन है। बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सर्कल की इक्वेशन नहीं है बच्चा। ये बेसिकली दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऑब्टेन की गई है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई माई टू लाइन्स, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द इक्वेशन। सो वो तो बात की बात है कि आंसर कैसे निकालेंगे। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच। इस क्वेश्चन के डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो प्लीज सी। Is the locus of a point which moves such that it is equivalent to the line this much. So I have first line like this and L1 like this. Let's take your L2 like this and your L1 like this. Okay, so यहाँ पे मेरे पास ये L1 थी, ये L2 थी, मैंने रैंडम लाइन्स बना दी है। Which moves such that is always equivalent to the line this much. अब equivalence की बात आ गई है and locus. तो बच्चा देखो, there are going to be bisectors basically. मेरे पास ऐसे ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स बन रहे होंगे। सो लेट मार्क योर एंगल बाइसेक्टर्स एज B1 एंड B2 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। नाउ व्हाट is going to work in this question? This was the equation. This equation is a locus of the point. It is a locus of a point. That means if this is a point given to me, my locus are going to lie over here and over here as well, because this is going to make a relation of perpendicular lines, perpendicular angle, which moves such that it is always equivalent to the line. This B1 and B2 has come from this line only, which moves such that it is always equivalent from the lines. So this line and this line is always going to be equivalent. That means they are equivalence line. Okay, find the value. Then all this information was just given to me. So now I know that my angles are going to be bisectors, and since my angles are bisectors, so I can just say that my B1 with respect to this is going to be x plus 2y plus 7 upon a square plus b square, that is root of 5, because 1 plus 2 ka square, that is 5, is going to be equal to, now at which point it's going to be equals to, it's going to be equals to this line, करेक्ट, बिकॉज ये क्या है, इक्विवेलेंस है विद द एंगल बाइसेक्टर्स। B1 और B2 से इक्विवेलेंस है, तो कहीं ना कहीं दोनों में भी खुद में भी रिलेशन बना रही है, बिकॉज दोनों एंगल्स इक्वल है एंड 90 डिग्री भी एंगल है।
प्लस 8 अपॉन 2 का 4, 4 + 1 √5, ये आ गया. नाउ यू विल से दैट वाई इट इज़ पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, येस बिल्कुल. और देर इज़ अ सेकेंड सिचुएशन दैट इज़ B2, विच वुड बी x + 2y + 7 अपॉन √5 with a negative sign minus 2x minus y + 8 अपॉन √5. सिंप्लीफाई कर देते हैं. सबसे पहले x और y को अपनी एक फॉर्म में ले आते हैं. सो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ बच्चा, सो आई विल गेट माई आंसर एज 2x - x minus y minus 2y 3y + 8 - 8 + 1 is equals to 0. First equation minus 2x minus x minus 3x plus y minus 2y minus y minus 8 minus 7, it would going to be minus 15 plus 0, sorry plus 60. Okay, since it is सब माइनस में है तो सब प्लस में आ जाएंगे. सो 3y + 8 3y 3x + y + 15 is equals to 0. आई गॉट 2 इक्वेशंस. अब एक चीज़ देखो, ये क्या था, ये बेसिकली प्रोडक्ट है 2 इक्वेशंस का. ये क्या है बच्चा, ये आपका प्रोडक्ट है 2 इक्वेशंस का. दैट मीन्स नाउ सिंस आई वांट टू ऑब्टेन दिस एज माय आंसर, आई जस्ट हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2. सो दैट मीन्स ये क्या है मेरे पास, दीज आर माय कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ B1 एंड B2. बेसिकली सबसे पहले आपको ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि दैट ठीक है, ये लोकस, ये जो है ये दोनों पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट मेरे लोकस हो गए विद दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, सच दैट ये दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम माई B1. सो ऐसे B1 बना. एंड सिमिलरली फॉर B2 ऐसे ही मेरे पास लाइन बन जाएगा. दिस इज़ 90, दिस इज़ ऑल्सो 90 और दोनों इक्वल होंगे. तो इसलिए B1 और B2 को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द कॉम्बाइंड लाइन ऑफ B1 एंड B2. सो लेट्स मल्टीप्लाई दैम टुगेदर एंड आई एम सिंपली गोइंग टू गेट माई आंसर एज x - 3y + 1 into 3x + y + 15 is equals to 0. Just multiply them and it would be 3x square plus xy plus 15x minus 9xy minus 3y square minus 45y plus, that would be plus 3x plus y plus 15 is equals to 0. Let's solve it out. So 3x square minus 3y square plus 2hxy है. So ये कट गया है, ये कट गया, hy ये. So minus 8xy ये आएगा. So minus 8xy ये गया, ये gxy के लिए 15 और ये 18. So plus 18x, फिर ये सारे स्टार्टिंग के कट चुके हैं, minus 45y एंड यहाँ पे प्लस y भी है, सो 44. ठीक है, ये और ये भी गया एंड प्लस 15. नाउ लेट्स ऑब्टेन योर नाउ ऑब्टेन योर GCHF. सो देखो G क्या बनेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ बेटा. माई G वुड बी सिंपल. ओके, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 1 था, सो लेट्स डिवाइड बाय 3 ऑल साइड्स. सो यहाँ पे मेरे पास हो गया डिजायर्ड आंसर. अब देखो G क्या था बच्चा, G वॉज माई ओवर हेयर x के साथ, इंटू 2 भी था और. सो यहाँ पे ये है, सो इंटू 2 का अगर मैं निकाल लेती हूँ तो 9/3 आ गया मेरे पास मेरा G. सिंप्लीफाई करके 3 आ जाएगा. अब मेरे को क्या निकालना था, आई ऑल्सो हैव टू फाइंड माई H, और H क्या है 2hxy. सो 2 से भी डिवाइड करेंगे, सो 4. सो 4/3. Similarly, what is my C? My C is going to be constant part, so 15/3. And then I have my F. F में 2 को डिवाइड करेंगे तो 22/3 विद द माइनस साइन. ये आ गया. अब कुछ नहीं करना था, अब सिंपली उठा के अपने इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं. सो इट्स, मैं यहाँ पे वाइट कलर से लिख रही हूँ, प्लीज़ लुक एट द अपर पार्ट. सो 3 प्लस 15/3 माइनस 3 प्लस अगेन H वुड बी 4/3 माइनस F, एंड F वुड बी माइनस प्लस 22/3. सो यहाँ से देखो बेटा, 3 एज इट इज़, 3 का एलसीएम ले लो, 19, एंड इट वुड बी सिंपली ऑन 19 प्लस 22. सो 1 3 4 41. सो 41/3. सो बेसिकली 9 आ जाएगा. सो 50/3 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर. आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा. जस्ट चेक द कैलकुलेशन कि कहीं पे भी मैंने कैलकुलेशन गलत ना कर दी हो. अकॉर्डिंग टू मी इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट फिर भी एक बार चेक ज़रूर करना ना बच्चा, बिकॉज कभी कभी हो जाता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो.
Okay, so just check it out. So that's all for today. Thank you so much for viewing my video. Thank you so much for loving me so much. It's highly motivational when you people show me so much love. So you can just comment below if you have understood the comment, understood the concept, plus if you have any certain doubts, you can just ask me. Thank you so much everyone. Bye bye. Have a great day, have a great night, and please start preparing for your paper. It's very near to you.